Hello everyone, you are watching Sriram tutorial. Today we are going to do a quick revision on sexual reproduction in flowering plant. Before starting our video, please subscribe my channel and click the like button if you like the video. Let us start our video. Our first question is perisperm is option A degenerate secondary nucleus, option B remnant of nucleus, option C peripheral part of endosperm, option D degenerate synergids. तो पेरिस्पर्म है हम लोग को एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है. पेरिस्पर्म मीन्स द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस. Okay, let us move to the second question. Which of the following fruit is a case of parthenogenesis? Okay, let us see what is parthenogenesis. Parthenogenesis मतलब fruit developed without fertilization is known as parthenogenesis. Now let us see the option. Fruit without seeds after pollination. Fruit with seeds after pollination. No, this is wrong. Option C. Fruits with viable seeds without fertilization. Option D. Fruits with viable seeds after fertilization. No. So option A is the correct answer. Fruit without seed after pollination. Okay. Let us move to the next question. Question 3. If an endosperm cell of an angiosperm has 24 chromosomes, the root cell of megaspore mother cell should have ऑप्शन ए 8, 16, 4, 24. तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन में एंडोस्पर्म सेल एंड एंजियोस्पर्म हैज़ 24 क्रोमोसोम. तो उसका रूट सेल मेगास्पोर मदर सेल में 16 क्रोमोसोम्स होंगे. ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी 16 क्रोमोसोम्स. Question number 4. How many meiotic divisions are needed for forming 100 grains of wheat? ऑप्शन ए 100, 25, 50, 20. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 100. 100 ग्रेन्स के लिए इसमें 100 meiotic डिवीजन का ज़रूरत है वीट में. ओके, फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए 100. Let us see our next question. Question number 5. Allurin layer is present in. Allurin layer is present in option A peripheral part of scutellum, peripheral part of coleoptile, cotyledons, peripheral part of endosperm. तो एनसीईआरटी में देखिए peripheral part of endosperm is the answer. 5 का आंसर है ऑप्शन डी. Let us move to the next question. Question 6. Which is the most logical sequence with reference to life cycle of angiosperm? ऑप्शन ए पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन. ऑप्शन बी जर्मिनेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. नो, जर्मिनेशन फर्स्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन सी क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, ग्राफ्टिंग, फ्रूट फॉर्मेशन. ऑप्शन डी मैचुरेशन, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, फर्टिलाइजेशन. आई थिंक आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन. यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Sporopollenin is secreted by. Sporopollenin is secreted by option A cytoplasm of the pollen, cytoplasm of pollen mother, cytoplasm of tapetum, cytoplasm of endothecium. तो इसका आंसर है cytoplasm of tapetum. Tapetum ही sporopollenin को secrete करता है. Let us move to the next question. Which one of these is not produced from the embryonic mass of dicotyledon seeds? ऑप्शन ए रूट टिप, ऑप्शन बी प्लेम्यूल, ऑप्शन डी हाइपोकॉटिल, ऑप्शन डी कोटिलिडॉन्स. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कोटिलिडॉन्स. बिकॉज व्हाट इज हाइपोकॉटिल? हाइपोकॉटिल क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट करता है स्टेम एंड ये स्टेम में कन्वर्ट होता है. जो सॉरी हाइपोकॉटिल रूट में बनता है, प्लेम्यूल स्टेम में बनता है. ओके, नेक्स्ट तो इसका आंसर है यहाँ पे नॉट पूछा है तो कोटिलिडॉन्स. क्वेश्चन नंबर 9. If the flowering plant has 12 number of chromosomes in each of its meristematic cell, which of the following structures would be 6 chromosomes? Have 6 chromosomes. Let us see the option. Root apex, pollen and megaspore mother cells, microspore and functional megaspores, secondary nucleus with the embryo. तो इसका आंसर ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर एंड फंक्शनल मेगास्पोर्स. Okay, let us see our next 10 number question number 10. The development of allobial endosperm is option A just like a cellular endosperm, exactly similar to that of a nuclear endosperm, intermediate between the nuclear and cellular endosperm. option B none of these. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी intermediate. Let us move to the next question. Question 11. Before moving to question 11, please subscribe my channel and click that like button. प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ना लाइक बटन.
ओके, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, embryo sac of an angiosperm is homologous to ऑप्शन ए मेगास्पोर, ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी स्पोरेंजियम, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज होमोलोगस टू, क्योंकि एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एम्ब्रियो सैक रिलेटेड टू फीमेल गैमेटोफाइट डैश इज रिलेटेड टू मेल गैमेटोफाइट, तो आप लिखेंगे पोलन ग्रेन्स। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, anthesis is ऑप्शन ए डाइसेंस ऑफ anthers, opening of floral bud, entry of pollen tube into ovule, emergence of anthers। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड का खुलना को ही बोलते हैं एंथसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी पोरोगैमी। पोरोगैमी कहते हैं मतलब जो पॉलन ट्यूब है माइक्रोपाइल से जब एंटर करते हैं उसको बोलते हैं पोरोगैमी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथरा रेस्पेक्टिवली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एक प्री बोर्ड्स में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए एंडोथीशियम एंड टैपेटम, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, एपिडर्मिस एंड टैपेटम। तो आंसर इज ऑप्शन डी एपिडर्मिस एंड टैपेटम। 15, in a fertilized embryo sac the haploid, diploid and triploid structures are। तो हमें पता है डिप्लॉयड कौन है, जाइगोट। जाइगोट हमेशा कहीं भी हो जाइगोट वर्ड देखते साथ आप डिप्लॉयड 2n है जाइगोट। एंड ट्रिप्लॉयड कौन है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3n है। तो यहाँ पे जाइगोट एंड 3n एंडोस्पर्म कहाँ पे है, कौन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए एंड सी में। तो ऑप्शन ए सिनर्जिड, तो हाँ एप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है एंड एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मिल्की वाटर कोकोनट इज, मिल्की वाटर इन कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड न्यूक्लियस, लिक्विड चलाजा। तो ऑप्शन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो जो वाटर है, जो कोकोनट का वाटर है उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, और जो वाइट कर्नल जो होते हैं हम लोग जो खाते हैं उसे कहते हैं हम लोग दिस सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डाइशियस। तो यहाँ पे बोला प्लांट विथ बोथ मेल एंड फ्लावर इज, बोथ मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, मोनोशियस मतलब दोनों सेक्स, डाइशियस मतलब एक सेक्स। तो दो फ्लावर्स बोला है दैट मीन्स मोनोशियस, मोनोशियस में दो फ्लावर्स रहते हैं। अ प्लांट विथ बोथ मेल एंड फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज कॉल्ड मोनोशियस। क्वेश्चन नंबर 18, फिलीफॉर्म अपैरेटस अकर्स इन, इजी क्वेश्चन। फिलीफॉर्म अपैरेटस किधर होता है, सिनर्जिड्स में होता है। सिनर्जिड्स में आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए एम्ब्रियो साइक का, उसमें क्लियरली एग अपैरेटस में दो सिनर्जिड, एक एक्सेल, फिर सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है, इट गाइड्स द एंट्री टुवर्ड्स द सेल टू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है अंदर जाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, a dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is। तो क्वेश्चन का यहाँ मीनिंग है, अ डाइकोटिलेडोन प्लांट बियर्स फ्लावर्स, फ्लावर बियर करता है बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट। यहाँ इसमें ये डाइकोटिलेडोन प्लांट में फ्लावर हो रहा है बट फ्रूट नहीं हो रहा है। द मोस्ट प्रॉबेबल कॉज, ये किस लिए हो रहा है, क्या कारण है जो फ्लावर हो रहा है पर यहाँ पे सीड फ्रूट डेवलप नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, ऑप्शन बी प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर्स, ऑप्शन सी प्लांट इज मोनोशियस, ऑप्शन डी प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर्स। अगर पिस्टिलेट फ्लावर्स क्या बोलते हैं प्लांट अगर ग्रो करता है, अगर ग्रो करता है तो बियर करता है तो उसमें फ्रूट होने का चांसेस है, बट स्टैमिनेट फ्लावर्स में, अगर स्टैमिनेट फ्लावर्स में फ्रूट्स आने का चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली स्टैमिनेटेड फ्लावर्स। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 256 microspores will form by the meiosis of 512 microspore mother cells.
128 microspore mother cells, 64 microspore mother cells, ऑप्शन डी 48 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plant suddenly started reproducing parthenogenetically, the number of chromosomes of second generation compared to the parent will be। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1/2, 1/4, डबल, सेम। क्वेश्चन देखते हैं और एक बार। इफ अ नॉर्मल प्लांट सडनली स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग पार्थेजेनेटिकली, the number of chromosomes of the second generation compared to the parents will be same। यस, सेम ही तो होगा ना, पार्थेनोजेनेटिकली करने से सेम होगा, ऑफस्प्रिंग का भी सेम होगा पेरेंट्स के साथ। तो उसका आंसर ऑप्शन डी सेम। क्वेश्चन नंबर 22, in a flower if a megaspore mother cell forms megaspores without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, it would be option A haploid, option B diploid, ऑप्शन सी a few haploid and a few diploid, ऑप्शन डी with varying ploidy। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिप्लॉयड। Let us move to the next question. Question number 23. In an embryo sac, the cell that degenerate after fertilization are, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से सेल जो है डीजेनरेट कर जाते हैं? ऑप्शन ए सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, नो, एंडोस्पर्म सेल तो बनता है ना। ऑप्शन बी सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, यस आई थिंक। नेक्स्ट तो सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, नो। ऑप्शन सी एग एंड एंटीपोडल्स, नो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स सीक्रेट होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन द एम्ब्रियोस ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर कोलिराइजा एंड कोलिप्टाइल, कोलिप्टाइल एंड स्क्यूटिलम, कोटिलेडॉन्स एंड स्क्यूटिलम, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोटिलेडॉन्स एंड स्क्यूटिलम, बिकॉज इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर, इन लोगों जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है ना वो कोटिलेडॉन एंड स्क्यूटिलम है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant? मतलब हाइब्रिडाइजेशन करने वाले एक डाइशियस प्लांट मतलब अलग अलग, मतलब फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बैगिंग ऑफ ए फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ पॉलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इमैस्कुलेशन क्यों करेंगे ना। अगर अभी फीमेल फ्लावर में करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें मेल का पार्ट होने से तो उसको इमैस्कुलेट करेंगे। इमैस्कुलेट मीनिंग रिमूवल ऑफ बर्ड्स इन एंथर, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर इन बर्ड कंडीशन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो फीमेल फ्लावर में इमैस्कुलेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्लांट इज डायोशियस। अगर मेल फ्लावर है उसमें भी इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इमैस्कुलेशन एक नॉन रिलेवेंट प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन डायोशियस प्लांट के लिए। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज exhibit autogamy, ऑप्शन बी कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज exhibit geitonogamy, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स exhibit both autogamy and geitonogamy, ऑप्शन डी कैस्मोगैमस फ्लावर नेवर exhibit autogamy। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज exhibit autogamy, बिकॉज ऑटोगैमी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर ओपन, मतलब क्लिस्टोगैमस हमेशा एकदम क्लोज ही रहते हैं, तो उसमें ऑटोगैमी तो होगा, श्योर 100% श्योर है इसमें ऑटोगैमी होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let us move to the next question. Question number 27. Autogamy can occur in a casmogamous flower if casmogamous flower means fully open flower. If a pollen matures before maturity of ovule. Option B, ovule matures before maturity of pollen. Option C, both pollen and ovules mature simultaneously. Option D, both anther and stigma are equal lengths. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। दोनों पॉलन और ओव्यूल दोनों को साइमल्टेनियसली मैच्योर होने से ही इनमें ऑटोगैमी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
A particular species of plant produce light, non-sticky, large in number and its stigma are long and feathery. This modification facilitates pollination by, तो नॉन स्टिकी, लाइट वेट, तो मतलब लाइट वेट इसलिए होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स ताकि वो हवा में उड़ सके। तो इसका ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन सी होगा, विंड। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, कलरफुल फ्लावर्स, रिच इन नेक्टर, तो आप लिखेंगे उसको इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, लाइट वेट होना है तो विंड के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, from among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. Option A, monoecious plants bearing unisexual flower. Option B, dioecious plants bearing only male or female flowers. Option C, monoecious plant with bisexual flowers. Option D, dioecious plants with bisexual flowers. तो इसका आंसर ऑप्शन बी, dioecious plant bearing only male और female flowers। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स अकेला अकेला हो रहा है तो दैट मीन्स ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी एक सेल्फ ही बोल सकते हैं उनको। अभी जेनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पैंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ अनदर स्पीशीज। ओके, तो जेनोगैमी, तो इसमें ऑटोगैमी जिटोनोगैमी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डायोसियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। Okay, question 30, our last question. Starting from the innermost part, the correct sequence of parts in an ovule is: option A, egg, nucellus, embryo sac, integument. Option B, egg, embryo sac, nucellus, integument. Option B correct लग रहा है। Option C, embryo sac, nucellus, integument, egg. No, option C, egg कैसा लास्ट में हो सकता है। Option D, egg, integument, embryo sac, nucellus. No, option D is wrong. तो option B is the correct answer, egg, embryo sac, nucellus, integument। तो यहाँ से हमारा ये MCQ सीरीज खत्म हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे बिहाइंड तो क्वेश्चन आने नहीं वाला है, इसी से सब कुछ कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर का MCQs और भी पोस्ट करूँगा मैं आपके लिए। तो तब तक स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।